अलैहिस्सलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اقرا تھے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ فضل اور سچائی یہ یسوع مسیح کی بدولت ہمیں ملی ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا الہام ہے، انجیل مقدس جو یسوع مسیح کے زمینی زندگی کے حالات، اس کے آنے کے مقصد کو بیان انجیل مقدس میں کیا گیا ہے۔ کسی بھی چیز کی تصدیق کرنی ہے، اگر کوئی چیز رقم ہے اور اس کی شہادت وہی لوگ دے سکتے ہیں جن کے تجربے میں سے یہ بات گزری ہو۔ اور اگر زمانے بدل جائیں، حالات بدل جائیں، زمانوں اور حالات کے تغیر و تبدل بدلنے کے باوجود جو واقعہ ہو چکا ہوتا ہے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ آنے والے واقعات کو ہم مولڈ کر سکیں گے، کچھ کام ہم کرنا چاہتے ہیں، کچھ نہیں کریں گے، وقت گزر جائے گا، پر جو ہو چکا ہوتا ہے دانستہ یا نادانستہ ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم چاہے کتابیں پھاڑ دیں، صفحے مٹا دیں، تو بھی جو کام ہو چکا ہوتا ہے اسے کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا یا اس کا منکر نہیں ہو سکتا۔ اور یسوع المسیح کی کمواری مقدسہ مریم سے پیدائش، دنیا الہام، تمام مذاہب عالم، الہامی مذاہب اس بات کے دعویدار ہیں، اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یسوع المسیح فی الحقیقت کماری مقدسہ مریم سے، یعنی باکرہ سے، بارتینوس مقدسہ سے پیدا ہوا۔ کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ انکارنیشن، اس کا کیا مطلب ہے؟ لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے انکارنیشن، جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں ان اور کارنل انگلش میں ایک لفظ ہے، یہاں پر پروفیسر حضرات ٹیچرز بیٹھے ہیں، جس کا مطلب ہے فلیش، یعنی گوشت، اور ان کا مطلب میں گوشت میں انویزیبل، غیر مرئی کا، نہ نظر آنے والا، جو ہستی ہے، جو شخص ہے، اگر وہ منظر عام پر آ جائے، اگر وہ کسی بھی حالت میں نظر آ جائے، یہ اس کی انکارنیشن ہے، یہ اس کا تجسم ہے، یہ اس کی پہچان ہے، یہ اس کا مکاشفہ ہے جو ہمیں ظاہری صورت میں مل گیا ہے۔ وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، دنیا میں اور آخرت میں مقرب، وجیہن معتبر، سب سے بڑا، اتم، نہ صرف اس جہان کے لیے بلکہ آنے والے جہانوں کے لیے بھی۔ کلمہ یہودیوں کی کتاب ہے تارگم، ان کی مستند کتاب ہے، اس میں میمرا لفظ کلمے کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ افلاطون، سقراط، بقراط لفظ لوگوس کے دو مفہوم بیان کرتے ہیں، ایک پرفیوریکس لوگوس ہے اور دوسرا اندیا تحتہوس لوگوس۔ ظاہری لوگوس، باطنی لوگوس وہ کہتے ہیں یہ ایک شخص ہے، اور جو ترجمہ میں بیان کیا گیا ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کلمۃ اللہ، خود اللہ ہے، خود خدا ہے۔ اور ایگزیجیٹو یونانی زبان میں ایک لفظ ہے، ایگزیجیٹی انگریزی زبان میں ہے، جس کا مطلب ہے انٹرپریٹیشن، ظاہر کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ظاہر کیا ہے، اس نے ایگزیجٹ کیا ہے، اور یہ جو ظاہر کرنا ہے یہ ہے تشریح کرنا،
बाप की तशरीह, खुदा की तशरीह यीशु मसीह ने की है कि खुदा मोहब्बत है। यीशु मसीह ने खुदा की मोहब्बत को बयान किया। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, यीशु मसीह ने कुल इंसानियत के लिए निजात का काम किया है। खुदा मुआफ करता है, क्राइस्ट ने मुआफी का दर्श दिया है। यूनानी जबान के अंदर डॉक्सा जलाल के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है रेडियंस ऑफ इटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी की शुआएं, हमेशा की जिंदगी की रोशनी। इससे पहले कि सूरज पैदा होता खुदा ने फरमाया रोशनी हो जा, और हमने आयत तिलावत की है जो कुछ भी पैदा हुआ वो उसके वसीला से पैदा हुआ जो खुद कलमा है, और कहा कुन फी कुन और हो गया, वो नूर है। यहोवा एलोहीम यही अऊर, और उसके कहने से रोशनी हुई और सूरज बाद में आया। रोशनी पहले से हर तरफ बिखर गई है, और यीशु मसीह कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई है। रोशनियों का मौजूद यीशु मसीह है, अंधेरों को मिटाने वाला यीशु मसीह है। और जब सारी नस्ल इंसानी गुनाह के अंदर, गुनाह में लथपथ थी, मौत की वादियों में थी, तब यीशु मसीह ने इस जमीन पर निजात का काम किया। और यीशु के नाम का मतलब ही निजात देने वाला, जो जिस्म में जाहिर हुआ और कलमे का तजस्सम हुआ। पैदा वो होते हैं जिनका पैदाइश से पहले वजूद नहीं होता है, मुजस्सम वो होता है जो पैदा होने से पहले भी मौजूद होता है, और ये यीशु मसीह है। उसने फरमाया कि तुम्हारा बाप अब्राहम तो मेरा दिन देखने के लिए तरसता था, बेकरार था। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र तो अभी 50 साल नहीं हुई है और उससे सदियां गुजर गई हैं, ये कैसे हो सकता है? और यीशु मसीह ने बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की इंजील में लिखा है, उसने कहा कि इससे पहले कि अब्राहम था, इससे पहले कि अब्राहम था मैं हूं। और ये टाइटल, ये लफ्ज मैं हूं, ईगो एमी, मैं हूं, ये बाइबल मुकद्दस में यहूदी जानते थे, तौरात को मानने वाले, शरीयत को जानने वाले जानते थे कि ये मैं हूं, ये ईगो एमी सिर्फ और सिर्फ एक ही दफा मूसा के सामने खुदा ने ये लफ्ज कहा था। जब उसने कहा तेरा नाम क्या है, उसने कहा बनी इस्राएल कौम को मिस्र में जाके कहना मेरा नाम है मैं जो हूं सो मैं हूं, मैं जो हूं सो हूं, आई एम व्हाट दैट आई एम, और इसको कोई बदल नहीं सकता है। और कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। ये बात ऐसी नहीं है कि इसको माना ना जाए। इल्म हयातियात के अंदर अगर ऐसा ना हो कि मर्द और औरत का मिलाप ना हो और नस्ल चले, अगर ऐसा ना हो तो एक लफ्ज है, मैं उसकी स्टडी कर रहा था, जिसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। शहद की मक्खियां ये सिर्फ मादा से नस्ल चलती है और नर का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, और इसे कहते हैं पैदाइश बाकरा। ये मानने को चीज आती है, साइंस किसी भी बात को नहीं मानती है जब तक तजुर्बा ना कर ले। और उसने कहा कि पैदाइश बाकरा ये बात हो सकती है अगर दरख्त कीड़े खाना शुरू कर दे, पौधे कीड़े खाना शुरू कर दे, तो क्या आप मानेंगे क्या कोई पौधा कीड़ा खा सकता है? पौधा कीड़ा खा सकता है? नहीं खाता। खा सकता है? प्रोफेसर साहब बैठे हैं, मेरा ख्याल इनके इल्म में होगा, पीछे प्रोफेसर साहब बैठे हैं। पौधे कीड़े खा सकते हैं? कोई ऐसा पौधा कोई इल्म में होगा? एक पौधा है जिसका नाम बायोलॉजी की किताब में 10वीं क्लास की किताब में गालबन उसकी तस्वीर भी बनी हुई है, उसका मुंह पर से खुला है, उसका नाम पिक्चर प्लांट। ये कराची से जवाब आया है, कराची से जवाब आया है। और ये पौधा ऐसा है कि ये कीड़े खाता है, इसका ढकना ऊपर से, इसका मुंह खुला होता है, लोहाब है, इसके अंदर कीड़े जाते हैं और फिर ये उनको निकल जाता है, कीड़े खाता है। कैसी अजीब बात है, हम इसको मानते हैं कि पौधे भी कीड़े खाते हैं, और ये हकीकत है, ये है, छोटे से बच्चे ने बताया है। उसका नाम क्या है?
मून ने इसका जवाब दिया है। और अगर ये सब कुछ है, अगर ये भी बात मानने को आती है, अगर वो भी बात मानने को आती है, पार्थेनोजेनेसिस की भी बात, तो फिर ये बात भी मानने को आती है मोनोजेनेसिस, वन एंड ओनली, यूनिक कलमा ए खुदा, खुदा में से खुदा, खुदा के साथ है और मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रखा, हमारे दरमियान सकूनत की, हमारे दरमियान डेरा लगाया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। कि वो जिसकी बशारत फरिश्तों ने दी है, जिसकी गवाही फरिश्तों ने दी है, जिसका नाम इमैनुएल रखा है, खुदा हमारे साथ, जिसका नाम यीशु रखा है, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। तजस्सुमुल कलाम हमारी नजात है, तजस्सुमुल कलाम करिश्मेस है, कलमे का हमारे दरमियान में सकूनत करना हमारे गुनाहों की मुआफी है। यीशु का कलमे का हमारे दरमियान में आना आसमान के दरीचों का खुल जाना है, और कलमे का हमारे दरमियान में आना इंसान और खुदा की ना सिर्फ दोस्ती है बल्कि इंसान और खुदा का बगलगीर होना है।